सेकेंड लास्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हम लोग ने मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा है उसके बारे में, आफ्टर वेक्टर्स। In the previous chapter, we learned about the kinematics of circular motion. When a particle moves with uniform speed v in a circular path of radius r, then magnitude of its acceleration is v square by r. Magnitude of its acceleration. And it is always directed towards the center of the circle, जिसको हम लोग बोलते हैं centripetal acceleration. This acceleration is called centripetal acceleration. Force responsible for centripetal acceleration is called centripetal force. It acts along the radius and directed towards the center of the circle. It can be written as Fc, centripetal force, as mv square by r. Fc is equal to mv square by r. ये formula कहाँ से आया? Force is mass into acceleration. Acceleration is centripetal, which is v square by r. तो m into v square by r is mv square by r. Or mr omega square. Why? Because if you see v by r, v by r is omega, right? Yeah. v by r ओमेगा होता है, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। तो और एक r अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एम आर ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस। Fc, centripetal force, is equal to mass into centripetal acceleration, that is mass into v square by r, that is इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर। वही हो जाएगा, सेम चीज है, सिर्फ मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और एक आर मल्टीप्लाई कर दिया। तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एम आर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूला है तुम्हारे सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर और m into AC. In above equation, omega is the angular speed of the particle, which is related to its linear speed as v is equal to r omega, or v by r is omega. We already know that. In other words, we can say that a particle requires centripetal force in order to move in a circular path, and role of this centripetal force can be played by any of the existing force in nature. For circular motion of the moon around the earth, role of centripetal force is played by the gravitational force of the earth on the moon. अगर एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को टाई करके हम लोग घुमाते हैं, तो कौन ये स्टोन को सर्कुलर पाथ में रखने का, स्ट्रिंग का कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टेंशन। सो हर एक केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कैन, एनी फोर्स कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है, दैट इज आई थिंक nuclear charge, force due to nucleus on the electrons, that makes the electron move in the circular path around it. In many other examples, we shall see that combination of more than one force can also play the role of centripetal force. We can say that centripetal force is the name of the required force needed to provide necessary centripetal acceleration for circular motion. So without centripetal force, there will be no centripetal acceleration, and without centripetal acceleration, there will be no circular motion. When a particle moves with uniform speed, or say uniform angular speed on a circular path, then its motion is called uniform circular motion. But in general, it is possible for the particle to move with non-uniform speed also on circular path.
मतलब सर्कुलर पाथ पे भी जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल एंगुलर डिस्टेंस, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें भी उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। Such type of motion is called non-uniform circular motion. In case of non-uniform circular motion, net force acting towards the center must always be mv square by r. मतलब सिर्फ एक फोर्स नहीं है towards the center. There are many forces acting on the particle because the motion is now not only centripetal, not only accelerated towards the center, it can be accelerated linearly also. मतलब पार्टिकल के पास लीनियर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो फोर्स होगा उसका नेट रिजल्ट विल बी mv स्क्वायर बाय आर। इसके लिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही रहेगा, although its speed might increase or decrease while moving in the circular path, but it will not leave the circular path. इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो mv square by r रहेगा as per the instantaneous speed v of the particle. For a particle moving in a curved path, it is often useful to consider the tangent and the normal to the path as two mutually perpendicular directions. तो कोई भी कर्व पाथ हो, चाहे वो सर्कुलर कर्व पाथ हो या कोई रैंडम कर्व पाथ हो, उसमें हम लोग दो डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, एक तो टेंजेंशियल टू द कर्व एंड एक नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में यू विल सी यहाँ पे वो लोग ने लिखा है एफ एन विच इज एम इंटू ए एन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखा है वो लोग ने एफ टी विच इज एम इंटू ए टी। ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। और ये क्या है? एफ। व्हाट इज एफ? दिस इज द रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी अगर ये सर्कुलर पाथ होगी तो? हाउ मच विल दिस रिजल्टेंट? एग्जैक्टली mv square by r. To keep the body moving in circular path, it should have the resultant equal to mv square by r. Although there can be multiple forces Fn, Ft, tangential and normal. Velocity of the particle is always along the tangent to the path. Let the net force F act on the particle as shown in the figure. We can break this net force in two components along the tangent and the normal. Tangential component Ft gives rise to tangential acceleration At, and normal component Fn gives rise to normal acceleration An. These two components of acceleration have got independent role in particles' motion. Tangential component of acceleration is responsible for change in magnitude of velocity, and normal component is responsible for change in direction of motion of the body. So suppose एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। पार्टिकल यहाँ पे पॉइंट ए पे, तो इसके पास यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। The normal at the point of contact is always perpendicular to the tangent and passing through the center. मतलब ये रेडियस के डायरेक्शन में होगा नॉर्मल, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा? इट विल गिव राइज टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल फोर्स क्या करेगा? इट विल गिव राइज टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। दोनों का यूज बताओ। टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा? व्हाट विल इट डू? It will change the speed, that is magnitude of velocity. मतलब अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो वो इसकी वजह से करेगा, ये है रिस्पॉन्सिबल उसकी वजह से, ठीक है। अगर ये हाँ, हर इंस्टेंट पे इसके इसका हाँ, इसके उसका इसलिए उसका लीनियर स्पीड वेरिएबल होगा, इसलिए उसके पास एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। बट अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगा,
स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो एफ टी चेंज करता है स्पीड को, एफ एन क्या करता है? इट चेंजेस, यस, द डायरेक्शन। इट मूव्स the body in the circular path, it helps the body to move in the circular path। अगर यही नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या हो गया? दैट इज योर, हाँ, विच प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। नॉर्मल मतलब वो तुम्हारा रेगुलर फोर्स है, ये तुम्हारा स्पेशल फोर्स है सेंट्रीपिटल, बिकॉज वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हेल्प करता है। एंड व्हाट इज दिस? नहीं हो सकता जब तक रेडियस कांस्टेंट है तुम्हारी। हाँ, अगर रेडियस चेंज हो रही है, बॉडी ऐसे स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है, तो फिर वो वेरिएबल होगा, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है ना। क्योंकि एफ सी डिपेंड्स, यस, जितना रेडियस छोटा होता जाएगा फोर्स उतना कम होते जाएगा, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा फोर्स ज्यादा होगा। हाँ, नॉट नेसेसरी। अगर मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से टर्न कर रहा हूं तो नहीं होना चाहिए वैसा। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो रहा है उसमें, तो हो सकता है, पॉसिबल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से करेंगे तो हो सकता है, फिर वो और स्ट्रेच होगा आगे, पॉसिबल। व्हाट विल दिस एक्सेलरेशन डू? दिस इज विच एक्सेलरेशन? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एसी, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये दोनों है चीजें जो सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंट है। In circular motion, normal component of acceleration is basically centripetal acceleration. In case of uniform circular motion, tangential component of acceleration remains zero, but when it is a case of non-uniform circular motion, then we can write tangential component of acceleration as at is equal to r alpha. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं वो लोग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखा है वो लोग ने? आर अल्फा, आर टाइम्स अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर, लीनियर वैल्यू अपॉन रेडियस क्या होता है? एंगुलर वैल्यू। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय रेडियस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, here alpha is angular acceleration of the particle and it is zero for uniform circular motion. There is no angular acceleration happening. What now, if you want to visualize this, you can suppose मेरे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, ये बॉडी यहाँ पे है पॉइंट ए पे, और ये उसका पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर। ठीक है, अब वो एक सेकंड के बाद पॉइंट बी पे आता है। सो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल? ये वाला एंगल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट लीनियर, राइट। एक सेकंड के बाद वो आता है सी पे, अब ये हो जाएगा थीटा 1, और एक सेकंड के बाद आता है वो डी पे, अब हो जाता है थीटा 2। यू थिंक दैट द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एंगुलर in angular direction or in circular path? Is the body covering equal distance in equal intervals of time? No. That means there is an acceleration,
Is the acceleration only centripetal? No, not only centripetal. Yes, there is centripetal acceleration because the body is moving in circular path, but there is a linear acceleration as well. Due to the linear acceleration and the circular motion, the combination of two, there is a change in angular displacement every unit time. Means एक सेकंड में पहले इतना एंगल बनाया, फिर एक सेकंड में इतना, फिर एक सेकंड में इतना, मतलब एंगल भी बढ़ रहा है. इफ यू सी, फॉर एवरी सेकंड द एंगल इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स देर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या बताया था मैंने? अल्फा. और उसका मैग्नीट्यूड क्या था? What is this? Tangential acceleration. Tangential, this one. This is tangential. अच्छा, मुझे बताओ कि अगर बॉडी, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे, सपोज यू आर राइडिंग अ बाइसिकल ऑन शिल्प चौक और उत्सव चौक, wherever, that's a circular path, right? If you, not bicycle, let's say your bike, because acceleration bicycle में difficult होता है समझना. हाँ, बाइक में तो एक्सेलरेट कर सकते हैं इजीली स्कूटी पे, right? So what you do is, as soon as you get into the circular path, you accelerate. So what you are doing is you are changing AT, that is tangential acceleration, because your bike is on circular path, but you are trying to go ahead in a faster rate, means you are accelerating tangentially. उसकी वजह से थीटा भी चेंज हो रहा है. You are covering now more angular distances in the same interval of time. That means AT changes alpha, or alpha depends on AT. If there is no AT, there will be no alpha. Although AC will be there. AC क्या होगा? Centripetal axis. वो तो होगा ही. As long as you are on that circular path, AC will be present. So AC has direct relation with the circular path. But alpha depends on AT, which depends on the acceleration which you are giving on the circular path. तुम हो ना यहाँ पे? फिर आर तो यही है ना यार. सर्कुलर मोशन में आर तो एक ही होता है, रेडियस. अल्फा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से है. यस, अल्फा दोनों पे डिपेंड करता है. डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. मतलब जो पिछले डायग्राम में जो रिजल्टेंट था वो अल्फा था. वो डायरेक्शन ऑफ ये है, मतलब उसी डायरेक्शन में वो ये मतलब रोटेशन होगा. यस, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो डिपेंड करेगा कहाँ पे डायरेक्टेड होगा, बट दैट विल बी अल्फा. मतलब ये है तुम्हारा AT का डायरेक्शन, ये है तुम्हारा AC का डायरेक्शन, ये अल्फा का डायरेक्शन होगा. इट विल बी अ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, बट इट्स direction will not be, because these two are at 90 degree, AT and AC. It's not necessary that alpha will be at 45, unless and until AT and AC are equal to each other. अगर ये AT और AC इक्वल है तो ही ये 45 पे होगा. हो सकता है ना AT ज्यादा हो AC से, या AC ज्यादा हो AT से. ठीक है, तो फिर अल्फा की डायरेक्शन उस हिसाब से चेंज होती रहेगी. बट अल्फा इज द रिजल्टेंट ऑफ AT एंड AC, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम. किसके फॉर्मूला में? या यू कैन से दैट इफ तुम अगर एफ AC का फॉर्मूला देखो, AC क्या होता है, FC क्या होता है? M इंटू AC, या फिर MV स्क्वायर अपॉन R. We can simplify that. We can write AC in terms of FC upon M, right? या फिर we can write M as FC upon AC. सही है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, उसमें भी तो मास होगा, राइट? तो वो मास को रिप्लेस करके हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन एग्जिस्ट करता ही है, क्योंकि बॉडी तो एक ही है, मास भी है उसके पास, मतलब उसका टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है. हाँ, बट वो फॉर्मूला में नहीं आता है, बिकॉज उसका डायरेक्ट जो कॉज है वो AC पे डिपेंडेंट नहीं है.
टेंजेंशियल पे डिपेंडेंट है, बिकॉज ऐसा हो भी सकता है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। अगर टेंजेंशियली 0 है तो अल्फा तो होगा ही नहीं, अल्फा विल नॉट बी देयर, it will have just one acceleration which is centripetal. Yeah. ठीक है। तो काफी सारी चीजें समझ में आई है। We can understand that when it is the case of non-uniform circular motion, then net force has component along tangent as well as radial direction. But in case of uniform circular motion, net force acting on the particle is always directed towards the center of the circle, having the fixed magnitude mv square by r. But one should not consider it to be a constant force because its direction is continuously changing. नहीं, बॉडी को सिर्फ सर्कुलर पाथ में रखना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। स्पीड चेंज नहीं करनी है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। यस। Circular motion of a car on a level road with uniform speed. Consider the case of a car moving on a circular path of radius r with a constant speed v on a horizontal road as shown in the figure. In this case, we are assuming the speed of car to be constant. Hence, in this case, no force is required along the tangent. कांस्टेंट स्पीड है, पहले ही बोल दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड ऑन द सर्कुलर पाथ थ्रू आउट। ठीक है, we just need a force towards the center of the circular path to act as centripetal force. Top view and front view of the car at a certain instant of time are shown in the figure. Can you see the top view? In top view, what is r? Radius of circular path, r. What is f? Centripetal force. What is v? Linear velocity. Linear velocity will be constant, है ना? No linear acceleration, no at. Therefore, v will be constant, f will be constant towards the center. हाँ, डायरेक्शन चेंज होगा उसका डेफिनेटली। फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू दिख रहा है साइड में? फ्रंट व्यू में समझ में आ रहा है, कार है, उसके नीचे 2 व्हील ड्रॉ किए। हाँ, ये 2 व्हील है और ये कार है। ठीक है, n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। mg क्या है? वेट ऑफ द कार। f क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द, ओके। ये f कौन प्रोवाइड करता है? इन विच डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। क्यों पता है? क्योंकि सर्कुलर पाथ में वो एंगल अपने आप बनता है। जैसे ही सर्कुलर पाथ में कार चलती है ना, उसकी टेंडेंसी क्या होती है पता है? सर्कल से बाहर निकलने की। तुम देखो कभी स्कूटी पे जाओ या साइकिल पे जाओ, हमारी टेंडेंसी होती है सर्कल से बाहर जाने की। फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है हमें मूवमेंट के ऑपोज करने की।
मूवमेंट का ऑपोज मतलब अगर टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की है, मतलब अगेंस्ट, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और वही फ्रिक्शन इस केस में किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जो हमें सर्कुलर पाथ में रखेगा। मतलब इन दिस केस, टू कीप आवर व्हीकल इन द सर्कुलर पाथ, विच फोर्स इज नेसेसरी? फ्रिक्शनल फोर्स, विच एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां पे फ्रिक्शन नेसेसरी हो जाता है। So there must be a certain amount of friction between the wheels of the car, of the vehicle and the road to keep the car in the circular path. Right? फ्रिक्शन अगर कम होगा तो क्या होगा? कार स्किड होके सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगी। फ्रिक्शनलेस होगा तो सर्कुलर पाथ कभी फ्रिक्शन लेस होगा तो कार सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर सकता। नहीं, तो जैसे ही वो टर्न लेगा, या तो वो सेंटर के अंदर गिर जाएगा या तो बाहर स्किड होके चला जाएगा। दोनों में से एक केस, डिपेंडिंग अपॉन तुम कितना, कौन सा एंगल बना रहे हो व्हील और सर्कुलर पाथ के साथ। ठीक है। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम we can write the following equation: n is equal to mg. For circular motion in horizontal plane, we can write the following equation: f is equal to mv square by r. What is mv square by r? सेंट्रीपेटल फोर्स, अभी देखा था ना हमने, fc is equal to small f. Small f क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. From equation 2 we can see that value of friction required between the road and the wheel is greater for greater speeds. ये भी एक समझ में आता है कि जितनी स्पीड ज्यादा, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही तो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो मतलब जितना v स्क्वायर, v की वैल्यू ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, बट वी नो दैट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनफाइनाइट बना सकते हो क्या तुम? नहीं बना सकते, उसका भी एक लिमिट है। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? विल इट बी काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन? आई डोंट एग्री विथ यू। बॉडी थोड़ी मूव कर रही है। एक फिर से शुरू करते हैं। बॉडी सर्कुलर पाथ में, ठीक है, बॉडी टर्न कर रही है, ठीक है, बॉडी टर्न कर रही है, फ्रिक्शन कौन सी तरफ एक्ट, किसकी तरफ एक्ट कर रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। और बॉडी की टेंडेंसी कहाँ जाने की है? जा रही है क्या बॉडी बाहर? जा रही है, नहीं गई है। टर्न लिया तुमने, बॉडी स्किड हुई क्या? हाँ, तो अब बताओ मोशन हुआ क्या? फ्रिक्शन के डायरेक्शन में हो रहा है क्या मोशन? फ्रिक्शन के अगेंस्ट डायरेक्शन में हो रहा है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है? हो रहा है रियली? फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में? उसके अगेंस्ट कौन सी डायरेक्शन में? सेंटर से ऑपोजिट। बॉडी कहाँ जा रही है? ऑपोजिट जा रही है क्या? हाँ, ये यही मेरे भी माइंड में यही कंफ्यूजन है, मैं भी तुम्हारी तरह आंसर ही ढूंढ रहा हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, आई एम सेइंग बट कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन। आई थिंक इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सर हम्म। सर जब बॉडी सर्कुलर मोशन के बाहर जाएगी, मतलब इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ऑफ द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब हाँ, आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड, आउटवर्ड अगेंस्ट, तब काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा ना? तब काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो। तभी ये भी मेरी बात F बोल रहा max होगा। है, एफ मैक्स हो जाएगा तभी। तब वो स्किड करने लगेगा किसकी डायरेक्शन में? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में स्किड नहीं हो रहा ना, फ्रिक्शन के अगेंस्ट डायरेक्शन में। You are understanding that there is only one line which we are focusing on, that is center and away from the center. Is the body moving in this line? No. ड्रॉ करके बताओ। इसमें हम लोग वो पाथ के फ्रिक्शन पे ये नहीं कर रहे, मतलब जो सर्कुलर पाथ में भी फ्रिक्शन है हाँ, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, no, we are not taking that. ठीक है, ये पाथ है, ठीक है। एक कार है जो
मैं टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, प्लीज अंडरस्टैंड क्या ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जा रहा है टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है, इसका ये डायरेक्शन है टेंजेंशियल। आई एम नॉट श्योर ये मैंने ठीक बनाया कि नहीं, फिर भी ओके। व्हाट इज दिस? देयर आर टू डायरेक्शंस हियर, अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड्स द सेंटर। एक फोर्स तो उसको सेंटर की तरफ खींच के रख रहा है, उसकी खुद की टेंडेंसी है सेंटर के बाहर जाने की, ठीक है। बॉडी कहाँ जा रहा है? क्या वो सेंटर के पास जा रहा है? सेंटर के पास भी तो नहीं जा रहा है वो, मतलब ये लाइन में मूव नहीं कर रहा है। यू एग्री विथ मी? बाहर नहीं जा रहा है, अंदर भी नहीं जा रहा है, वो टेंजेंशियल ही रहता है, राइट? ओके। अगर वो बाहर भी नहीं जा रहा है, अंदर भी नहीं जा रहा है, मतलब ये लाइन में उसका मोशन है ही नहीं। मतलब एफ की जो वैल्यू है, जो उसको सेंटर की तरफ रख रही है, हाँ, फ्रिक्शन, वो कांस्टेंट है, राइट? अगर उसका मोशन फ्रिक्शन के अगेंस्ट बढ़ने लगा तो क्या होगा? बाहर जाके रहेगी। तो वो स्किड हो जाएगी। हाँ, तो तब वो स्किड हो रही है, ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। यू एग्री विथ मी और नॉट? हाँ हाँ, ओ तुम खुद ही आंसर दे रहे हो। मतलब इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन है, यही मैं बोलना चाहता हूं कि इस केस में कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक, काइनेटिक नहीं होगा। जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन की बाउंड्री को क्रॉस करेगी ना, तब वो स्किड होना शुरू करेगी। देन इट विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। वी डोंट वांट इट टू गो इन दिस डायरेक्शन बिकॉज हियर द रोड एंड्स, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। वी वांट इट टू गो लाइक दिस, ठीक है। और हर पॉइंट पे तुम देखोगे तो टेंजेंट बन रहा है, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है। और मुझे उसको टेंजेंशियली रखना है, मतलब क्या है कि जो एफ की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। बट जैसे ही मैंने एफ को ओवरकम किया तो क्या होगा? ये टेंडेंसी बढ़ जाएगी मेरी बाहर जाने की। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करके अब कौन सा बन गया है? मुझे नहीं होने देना है वो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब एफ का जो वैल्यू है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग। बट लेट्स सी, मैं गलत भी हो सकता हूं, तुम सही हो सकते हो, आई डोंट नो, विल रीड इट, ठीक है। सो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द व्हील इज ग्रेटर फॉर ग्रेटर स्पीड्स, बट वी नो दैट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, हेंस द स्पीड ऑफ द कार कैन नॉट be increased beyond a certain beyond a limit for safe turn without slipping। मतलब एक मैक्सिमम स्पीड होती है जिससे तुम गाड़ी चला सकते हो टर्न पे, तो हाँ, तो वो स्किड हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन में आके गाड़ी स्लिप होके इट विल लूज दैट सर्कुलर पाथ, ठीक है। फॉर सर्कुलर टर्न विदाउट स्लिपिंग वी कैन राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू mv square by r, which is smaller than or equal to mu n. What is mu n? Mu mg, which is f max। फ्रिक्शन f max से कम रहना चाहिए। नहीं होगा ना, इक्वल टू और लेस देन बोला है यहाँ पे, मतलब जस्ट स्टार्ट करेगी तो दैट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच यू कैन क्रॉस द सर्कुलर पाथ। अगर इक्वल हुआ तो, इक्वल हुआ तो भी यू आर ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग आउट, बट यू आर नॉट एक्चुअली स्लिपिंग आउट। तुम एफ मैक्स तक गाड़ी को लेके जा सकते हो, बट एफ मैक्स से एक पॉइंट भी अगर स्पीड बढ़ा दी तुमने, मतलब स्लिप आउट होके गाड़ी चली जाएगी बाहर। ये हम नहीं करते, ये वो फॉर्मूला 1 के ड्राइवर्स करते हैं। हम कहाँ करते हैं, हम तो बहुत सेफ लिमिट में चलते हैं, हम तो एकदम सेफ लिमिट में टर्न लेके चले जाते हैं। लेकिन वो जो होता है ना बंटाई लोग, तलोजा के बंटाई, वो बंटाई लोग करते हैं ये सब, और स्लिप होके कई बार मर भी जाते हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये होता है, ठीक है। सो एम वी स्क्वेयर बाय आर इज स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू एम जी, और v is smaller than अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। मतलब ये जो v है
This is your maximum speed with which you can cross the circular path without skidding or slipping. V max भी बोलते हैं इसको. From रेडियस और फ्रिक्शनल कांस्टेंट पे डिपेंड एग्जैक्टली मतलब वो यहाँ से क्लियर है कि कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ, नॉट काइनेटिक. काइनेटिक है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द व्हील, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, एंड रेडियस. मतलब जितना ज्यादा रेडियस रहेगा उतनी स्पीड से तुम गाड़ी को घुमा सकते हो सर्कुलर पाथ से. ठीक है, छोटी रेडियस पे ज्यादा स्पीड से घुमाने जाओगे तो पक्का गिरोगे. ठीक है, v की वैल्यू वैसे ही बहुत कम हो जाती है. और म्यू मतलब अगर स्लिपरी रोड है, बारिश हुई है, ऑयल गिरा है और ज्यादा स्पीड से गए तो स्किड हो गए पक्का. वहां पे भी तुम्हें स्पीड को कम रखना पड़ेगा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा उस केस में. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ज्यादा रखो और अगर आर को ज्यादा रखो तो v की वैल्यू फिर तुम्हारी और इंक्रीज हो जाएगी. कार्स कैन टर्न एट ग्रेटर स्पीड. ठीक है, सो मैक्सिमम पॉसिबल यूनिफॉर्म स्पीड टू टेक टर्न विदाउट स्लिपिंग ऑन लेवल रोड इज म्यू जी आर, रूट ऑफ म्यू जी आर. ये समझा? काइनेटिक और स्टैटिक का क्लैरिटी भी हो गया. चलो अच्छी बात है. सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब अब किसी बंटाई ने ठान लिया है कि मैं सर्कुलर पाथ पे जाके एक्सेलरेट करूंगा. जस्ट इमेजिन ये क्या है. ये लोग अपना टाइम आएगा. आई डोंट थिंक सो मैम. बहुत स्लो स्पीड रहेगी तो ही. बट इफ यू आर ऑलरेडी एंटरिंग विथ अ गुड अमाउंट ऑफ स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, you tend to slow down your car, you brake and then you accelerate a bit to just get through. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेट करके मैं एंटर करेगा अंदर. मीन्स आई एम ऑलरेडी एंटरिंग एंड देन आई एम एक्सेलरेटिंग. आई डोंट, नेवर, nobody does that. Yes, you apply the brakes, you slow down, and maybe, you know, if your acceleration is enough, then you cross with the same speed, and then after exiting you again accelerate. Yes. सर नॉर्मल नॉर्मल कोई भी कार अगर ट्रैक पे जा रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे कौन ये करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या होगा? कौन उसको अंदर खींचेगा? फ्रिक्शन अंदर खींचेगा, हाँ, अंदर रखेगा फ्रिक्शन. और ये जो बाहर मूव करने की टेंडेंसी है, दैट इज अ सूडो फोर्स. आई थिंक दैट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. स्टैटिक फ्रिक्शन से कम स्पीड रहेगी मतलब ये mv² बाय r बोल रहे हो तुम. इसमें v की वैल्यू डाल के f से कम वैल्यू आएगी तो क्या होगा? तो कार सर्कुलर पाथ पे ही रहेगी. हाँ, तो सर्कुलर पाथ पे आराम से. कहाँ पे? नहीं, because that depends on your your steering na. If you want to move it towards center you will, but it will not go like, you will not skid towards the center, not possible, because if you are in circular path you will experience a force away from the center. As soon as you move in a straight path that force will disappear. जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सूडो फोर्स होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स तो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट होता है. इस पे तो इक्वली. Yes, for the same radius. So let a car be moving with a constant acceleration a on circular road along the tangential direction as shown in the figure. In this case, the speed of the car will continuously change while moving on the circular path. When the car moves with a non-uniform speed on circular turn, then one component of the friction directed towards the center, F1, always provides the necessary centripetal force, and the other component of the friction, that is the one along the tangent, F2, provides tangential acceleration. Now is it clear? क्यों F1 और F2 है? एक सेंटर की तरफ है जो कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ द सर्कुलर पाथ, और एक F2 है जो टेंजेंशियल है, जो डेलिबरेट है. हाँ, जो एक्सप्लिसिट है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे टू एक्सेलरेट इन द टेंजेंशियल पाथ, टू प्रोवाइड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. Let v be the speed of the car at certain instant of time. We can write the following equations. F1
is mv square by r, f2 is equal to ma. f1 will be along the towards the center, f2 will be along the tangent. करेक्ट है ना, यहाँ पे कोई गलती नहीं है. Normal reaction and weight of the car are acting similarly as in the previous case, so n is equal to mg in vertical direction. So we are concerned with horizontal direction only. From equation 1 and 2 we can write that the total friction on the car. हाँ, अब ये जो F1 F2 है ना, these are not just normal forces, these are perpendicular frictional forces. क्योंकि अब कार को दोनों फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, ओवरकम नहीं करना है बट दोनों फ्रिक्शन फेस करना है. एक है टुवर्ड्स द सेंटर और एक है टुवर्ड्स द टेंजेंट, क्योंकि कार आगे की डायरेक्शन में भी अब एक्सेलरेट कर रही है, तो फॉरवर्ड फ्रिक्शन भी होगा, मतलब बैकवर्ड फ्रिक्शन भी उसको पीछे खींचेगा और सेंटर की तरफ भी फ्रिक्शन उसको रखेगा. तो ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस साइमल्टेनियसली कार पे उसी मोमेंट पे एक्ट कर रहे हैं. और जो नेट फ्रिक्शन है दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फ्रिक्शन विल बी अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर. दैट इज योर नेट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार. सही है ना? ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, तो नेट वेक्टर है ये तो. सो f इज इक्वल टू m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v रेज टू 4 बाय r स्क्वायर. हाँ, तो ये सिंप्लीफाई किया है, f1 की वैल्यू यहाँ पे डाली है, f2 की वैल्यू यहाँ पे डाली है, सिंप्लीफाई किया है इसको सिर्फ. और m स्क्वायर आता था दोनों में, m स्क्वायर को बाहर निकाल के m बना दिया है, रूट के बाहर निकाल के. So this is the total force, frictional force acting on the car when it is accelerating in the circular path. Equation 3 represents the required friction at a certain instant when the speed of car is v. We know that speed v in the above relation is continuously increasing at a constant rate, and hence requirement of friction will also increase with time. But we know that there is a maximum limit to the magnitude of friction. So you cannot accelerate indefinitely on the circular path. There is a limit to it. For no slipping conditions, while moving on circular path, we can write this equation. So the same thing we have just copied over here. That is the value of net friction over here. And we have just written smaller than equal to mu n or mu mg. इसका मतलब है f की वैल्यू म्यू n से किसी भी हाल में कम ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो स्किड करना शुरू कर देगा, सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा. ठीक है. सो ये तो हो गया तुम्हारा इक्वेशन फॉर सेफ सर्कुलर ट्रेडिंग विदाउट गेटिंग स्लिप्ड आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर विथ एक्सेलरेशन. विथ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल. ठीक है. बट इसमें वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके वेलोसिटी को लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे तो ये इक्वेशन बनेगा. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी you can attain with acceleration. Maximum velocity you can attain is mu square g square minus a square into r square the whole raised to 1 by 4. हाँ, डिपेंड करता है, कम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स के स्क्वायर है. हाँ, सारे टर्म्स के स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशंस भी है स्क्वायर वाली टर्म्स के, यहाँ भी टोटल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद फिर 1 by 4 आता है. हाँ ठीक है, बट दैट डजंट मैटर लाइक अ लॉट. सो दिस ऑल्सो विल बी अ सर्टन अप्रिशिएबल वैल्यू फॉर. किस पे डिपेंड करेगा बताओ? म्यू पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा और आर पे डिपेंड करेगा. म्यू पे रेडियस कितनी है और एक्सेलरेशन कितना कर रहे हो तुम, क्या किस रेट से एक्सेलरेट कर रहे हो. जी तो फिक्स रहेगा. ठीक है. ओके. साइक्लिस्ट का भी इसमें केस एक बताया है, आई डोंट नो ये आगे बताया क्या, इसमें ही बता के खत्म किया है. बैंकिंग ऑफ द रोड, साइक्लिस्ट देख लेते हैं. समझ में आया ना तुम्हें? एक्सेलरेशन और विदाउट एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए मैक्सिमम स्पीड का कैलकुलेशन दिखाया. फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें. हाँ मतलब बना भी सकते हैं, बना भी सकते हैं. क्वेश्चन अगर बनाना तुम
तुम्हारा स्ट्रेंथ होता है, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। मेमोरी पे जितना कम, बट इसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, एंड इफ यू नो दैट अच्छा ये सारे क्वांटिटीज थे एंड दिस वाज द इक्वेशन, हाँ सीधा सीधा, हाँ वो म्यू इज इक्वल टू ए बाई जी, so easy it becomes. So whenever a cyclist wants to move in circular path or wants to take a turn, he has to bend the cycle towards the center of the path at certain angle in order to avoid the slipping. कॉर्नरिंग करता ना बाइक से एक्सपीरियंस पूरा बेंड होते हैं वो लोग, जो स्क्रैप करते हैं हाँ उनका नी, करेक्ट, so that is also the same reason. हाँ तो they don't want to skid out, they want to accelerate, and स्पीड स्लो नहीं करनी होती है, और इसलिए उनको और ये सब करने के लिए सर्कुलर पाथ पे यू शुड नॉट स्किड, और वो करने के लिए बेंडिंग आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन. So let the cyclist be moving on a circular path of radius r, small r. In the given figure, the cyclist is taking a rightward turn while his motion on the circular path is shown in the figure. Let the mass of the cycle along the mass of the cyclist be m. ठीक है, ये g क्या है पता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पे मास एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो जी से नीचे मास एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे वेट है साइक्लिस्ट का विच इज एम जी. कैन यू टेल मी इन दिस केस व्हाट इज आर? आर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, पर वेट तो आर cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए ना, अगर mg वेट लिया है तो मतलब हाँ आर कॉस थीटा होगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट. आर कॉस थीटा कैसे आया नॉर्मल रिएक्शन, मैं ये पूछ रहा हूँ. सो व्हाट वी डू इज, ये जो जिस एंगल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वहां पे हम लोग एक ऐसा नॉर्मल बना देते हैं, सॉरी एक ठीक है, एक ऐसा हमने लाइन बना दिया. अब यहां ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा ये साइक्लिस्ट, ये वाली सरफेस के साथ, इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है. ओके, इस सरफेस पे अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वहां पे आर एक्ट करेगा. ये सरफेस से नॉर्मल है वो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है. अच्छा, ये आर को हम लोग दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे. कौन से दो डायरेक्शन में? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. इनमें से वन ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी अलोंग mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है. अच्छा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल प्लेन के साथ ये आर कितना एंगल बनाएगा? तो ये एंगल अगर तुम्हें जानना है तो यू कैन फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द साइक्लिस्ट विद द वर्टिकल प्लेन. उसको अगर हम लोग थीटा ले लेते हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो है ना. यू एग्री विथ मी? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल सेम है. तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है. तो मतलब अगर ये वर्टिकल प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? आर साइन थीटा. अब mg को बैलेंस कौन कर रहा है? हाँ, तो दिस इज, यू कैन से द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज द one of the component of the reaction force in this position of the cyclist. In this slant position of the cyclist, mg को बैलेंस कौन कर रहा है? r का एक component which is r cos theta. Okay, so which component of r is acting towards the center? So will that be beneficial for the cyclist or not? Yes, it will be. और मतलब बाहर जाने से रोकेगा. यस एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली बॉडी की? स्लिप होना बाहर की तरफ. सेंटर की तरफ गिरना कभी भी नहीं होती है टेंडेंसी. सेंटर की तरफ तो उसको रहना है क्योंकि सर्कुलर पाथ में उसको घूमना है. तो आर साइन थीटा विल कीप इट टूवर्ड्स द सेंटर. अच्छा, देर इज वन मोर फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर विच इज द फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हेल्प करेगा ये आर साइन थीटा.
मतलब now there are two forces which are helping the cyclist to be in the circular path, F and R sin theta. अच्छा, sin theta is directly proportional to theta. You agree? जितना एंगल बढ़ाएगा साइन थीटा बढ़ेगा. मतलब क्या है कि वो जितना बेंड होगा उतना थीटा बढ़ेगा, उतना साइन थीटा बढ़ेगा, और उतना वो एडिंग फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू करेगा. Yes, so bending of bicyclist will help up to a certain level, of course. So the cyclist bends by an angle theta. When the cyclist bends, it applies a contact force on the road inclined at an angle theta with the vertical, due to which the road applies a reaction force on the cycle. Now we can resolve the reaction force into two components: r sin theta along the center of the circular path, which is basically frictional force, and this force acts as a centripetal force. R cos theta acting in the vertical direction, which balances the weight of the cycle along the weight of the cyclist. For horizontal direction, r sin theta is equal to mv square by r. R cos theta acting in vertical direction, which balances the weight of the cycle along with the weight of the cyclist. Okay, ये तो हो गया था. And for vertical direction, r cos theta is mg. Dividing both the equation, we can get the value of tan theta. Or what? Which resultant? नहीं, ये इसका कोई लेना देना नहीं है. हमको ढूंढना है v की वैल्यू, इसलिए हम दोनों ने डिवाइड कर दिया. हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो v की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. टैन थीटा भी ऐसा ही होता है. थीटा, टैन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. जितना थीटा बढ़ाओगे टैन थीटा बढ़ेगा, राइट. तो v किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे. किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे. और किस पे डिपेंड करता है? जी पे. जी कांस्टेंट रहता है. मतलब जितना बड़ा रेडियस का सर्कल है उतनी ज्यादा स्पीड से मैं जा सकता हूं, और जितना थीटा ज्यादा है उतनी ज्यादा स्पीड से मैं जा सकता हूं. सो दैट्स व्हाई हाई स्पीड हायर बेंडिंग इज पॉसिबल. Banking of the road. On a horizontal road, we have seen that it is only friction which helps to take circular turn. If we tilt or bank the road bed by a certain angle in such a manner that the normal to the road is tilted towards the center of the circle, so the normal reaction is also tilted towards the center. ये bending of cyclist का application है. तुमने अगर ये शिल्प चौक पे तो नहीं है, बट उत्सव चौक पे ये बैंकिंग दिखता है. बारिश के टाइम पे उत्सव चौक के जो सेंटर है ना, वहां पानी भर जाता है, और वहां पे वो गटर भी दिए साइड में, तो सारा पानी जमा होके उधर चला जाता है. कभी कभी वो चौक हो जाता है तो उधर पानी भर जाता है. इसका मतलब क्या है? देयर इज अ टूवर्ड्स द सेंटर देयर इज अ स्लोप. मतलब ये जो स्लोप है ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली किसी भी व्हीकल को ऐसा टिल्ट कर देता है, और वो टिल्टिंग तो नेसेसरी है. अभी हमने देखा बेंडिंग ऑफ बाइसिकलिस्ट में कि जितना कोई भी बॉडी टिल्ट होगा उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी टिल्ट होगा उतने एंगल से. मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो क्रिएट होगा. पहले वो कंपोनेंट जीरो था. फ्लैट रोड पे वो कंपोनेंट होता ही नहीं है, बट जैसे ही कोई भी बॉडी बेंड करता है तो वो सेंटर के टूवर्ड्स एक नया कंपोनेंट आर साइन थीटा क्रिएट होता है. और ये कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उतना बेंडिंग होगा नेचुरली. स्लिप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. सर्कुलर उधर ही तो जरूरी. नॉर्मल रोड्स पे भी होता है कभी कभी. दैट इज द मार्वेल ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग विच यू सी. हाँ, स्ट्रेट रोड पे बैंकिंग देखा है तुमने? यस यस यस, यू आर. वो अंदर जाने के रास्ते पे. यस, सो दैट इज अ स्पेशल. फिजिक्स के जो वेक्टर्स है ना वो तुम्हें वहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सिखाते हैं वो लोग. तो वहां से आप साइकिल लेके गुजरो, भाग के जाओ, यू फील कि फिजिक्स के कुछ अजीबो गरीब फोर्सेस तुम्हारी बॉडी पे एक्ट करे जिसकी कोई जरूरत नहीं है. तुम वैसे भी जा सकते हो, सीधे सीधे ही जाना है, बट वो तुम्हें टेढ़ा लेके सीधा लेके जाता है वो. मतलब मार्वल ऑफ सिडको.
क्या बोलूं मैं? सर राहुल, तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? हेलो तुम्हारे घर पे ऐसे, सर, मतलब आवाज शादी में सुनाई आए नहीं हो दी क्या? है। तुम शादी में गए हो ऐसा लग रहा है। हाँ, बोलो 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 राहुल, मैं मजाक कर रहा हूँ, बोलो। सर वो जो हाँ, वॉल ऑफ डेथ जो होता है वेल वेल उसमें ऑफ थीटा डेथ 90 होता है, होता है, तो वॉल उसमें नहीं, वेल। हाँ, अच्छा वेल, तो उसमें थीटा कहाँ अप्लाई होता मौत है? का कुआं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन। वहां पे ग्रेविटी तुम्हें टिल्ट करवाती है। वहां पे क्या होता है पता है? यू डोंट वांट टू फॉल इन, बेसिकली। तो तुम स्पीड और बढ़ा सकते हो, क्योंकि योर टेंडेंसी टू फॉल आउट शुड बी ग्रेटर, है ना? तो तुम कितनी भी स्पीड से जा सकते हो। तो वहां पे द आइडिया इज नॉट टू फॉल इन, बिकॉज ग्रेविटी विल बी लाइक डायरेक्टली एक्टिंग ऑन योर साइडवेज टिल्टेड बाइक। तो मतलब तेरा तेरा टेंडेंसी रहेगा तू नीचे गिर जाएगा अगर तेरी बाइक रुक गई तो। ठीक है, तो रोकना नहीं, अपने को स्पीड बढ़ानी है जितनी हो सके उतनी, वेल ऑफ डेथ में। सही है। ओके कब सर। जा रहा है तू वेल ऑफ डेथ में, ये बता। तूने चलाया बाइक वहां पे? सर जा नहीं रहा मैं। अच्छा, हाँ। वो एक केज में भी मोटरसाइकिल चाहिए होता है। हाँ, वो पूरा स्फेरिकल केज होता है। सो हाई स्पीड इज द ओनली वे यू कैन नॉट फॉल। नहीं, उसमें भी स्किड नहीं होते। वही तो है ना, वहां पे स्किड, बिना स्किड हुए तुम अपनी स्पीड बढ़ा बढ़ा सकते हो। स्पीड तो कभी होगा नहीं क्योंकि ग्रेविटी होनी चाहिए। स्पीड बढ़ाओ ना तुम, तो क्या होगा? ये देखिए, इक्वेशन देखिए वाला, ये एक्सेलरेशन का है ना। तो यहां पे तुम ए को जी से इक्वल कर दो। दैट्स टू मच हाई, टू मच ऑफ स्पीड। ए को जी से इक्वल कर दो तो म्यू जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा। म्यू जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यहां से कॉमन क्या आएगा? जी स्क्वायर। और क्या बचेगा? म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू स्क्वायर म्यू माइनस स्क्वायर माइनस 1, सो दैट्स अ रियली ग्रेट वैल्यू, क्योंकि जी स्क्वायर बाहर आ गया तेरा। मतलब जो सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू थी, अब सिर्फ वो 1 बच गई, और तू जी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तू। सो आई थिंक स्पीड विल इंक्रीज बाय अ ग्रेट अमाउंट। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। रियली हाई स्पीड मीन्स, मैंने मौत का कुआं एक्सपीरियंस तो नहीं किया है कभी। So we get a component of normal reaction in the horizontal direction which acts towards the center of the circle and provides centripetal force. ये banking of road की बात कर रहे हैं हम लोग. Hence it is possible to take circular turn of radius r with speed v without friction using road with proper angle of banking, without making any extra effort. We can see that on highways whenever there is a circular turn, then in most of the cases, ये तुमने expressway पे देखा होगा, there is a natural banking which is given by the people. High speed roads पे होता ही है natural banking. We can see that on highways whenever there is a circular turn, then in most of the cases road bed is inclined by a certain angle and it helps in taking circular turn with higher speeds. To visualize one extreme case of banking of road, we can think about circus show of motorcycle running inside a well. Cylindrical wall of the well is inclined and person drives the motorcycle on or car on the inclined surface of well. Let us, बस इतना ही दिया है extreme case of banking of road में. Let us first consider a case when there is no friction on the road and then we can understand the mixed case of banking and force of friction. So पहले banking of road without friction. So एकदम smooth road है, slippery, frictionless surface, लेकिन banking है अच्छा खासा, थीटा दिया हुआ है. In figure 18.1, a car running on a banked road is shown. The road bed is inclined at an angle theta. Front section view is shown in the figure.
Since there is no friction on the road, hence normal reaction N and weight mg of the car are the only forces acting on the car as shown in the figure. Vertical component of the normal reaction n cos theta balances the weight mg of the car to maintain the vertical equilibrium, and horizontal component of normal reaction n sin theta acts as a centripetal force for circular motion. एक बार प्लीज फिगर देख लो और समझ लो क्या है. n will always be perpendicular to the surface. N is inclined, okay, because surface is inclined. Surface is inclined at theta, right, with the horizontal. So n will also be inclined at a certain angle, ठीक है, with the horizontal. N will make an angle of 90 minus theta with the horizontal, है ना. अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो n सरफेस के साथ 90 माइनस नहीं n हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा. ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो. ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 एंगल होता है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा आ जाएगा. ठीक है, तो n के दो कंपोनेंट हो गए, n cos थीटा n sin थीटा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. अच्छा मुझे बताओ mg को बैलेंस कौन कर रहा है, वही यहाँ पे बोला है. और n sin थीटा क्या है, व्हाट इज n sin थीटा? It is the centripetal force which keeps the body frictionless plane है ये, without friction. So only centripetal force which is there is n sin theta. n sin theta is mv square by r. यहाँ v नॉट दिया है, v नॉट क्यों बोला है, कहीं लिखा है वो लोग ने? नहीं, नेक्स्ट पेज पे बोलेंगे. ठीक है, here v naught is the speed of the car and r is the radius of corresponding circle when there is no friction on the road. तो v naught क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्पेशल केस है जहां पे फ्रिक्शन जीरो है. फ्रिक्शन ना होने पे भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर सकती है गिवन दैट एंगल बैंकिंग हो रोड पे. सो n sin theta will supply that necessary centripetal force which is required, which friction was doing in the earlier case. We should note that radius of the circle increases when the car moves up on the inclined plane of the road and radius decreases when the car goes down on the inclined plane of the road. कार की पोजीशन पे radius depend करता है. For a certain level there is one particular radius and we have assumed the radius r for the same. ठीक है, we can divide the equation 1 and 2 to get the following relation. Tan theta is, मतलब वही वो दो इक्वेशन को पहले डिवाइड किया था ना हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में, सेम चीज की है. तो यहाँ भी हमने ये दोनों को डिवाइड किया 1 and 2 को, और हमें मिला tan थीटा इज v नॉट स्क्वायर बाय आर जी, और v नॉट इज अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, जो सेम इक्वेशन था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बट वो डेलिबरेटली बेंड हो रहा था. यहाँ पे नेचुरल बैंकिंग दी है. हाँ, इसलिए तो डेलिबरेट बेंडिंग भी उसको और हेल्प कर रहा था साइक्लिस्ट को. वहां पे फ्रिक्शन था, यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन है तो बैंकिंग हेल्प कर रहा है. In this case of banking without friction, car needs to maintain the exact speed v naught given by equation number 4 to move at the same vertical level. जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, मतलब क्या है कि उसको बाहर जाना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा उसको, मतलब वो एज पे जाके टर्न करेगा. ज्यादा स्पीड पे टर्न करना है, फ्रिक्शन नहीं है, बैंकिंग है, एज पे चले जाओ. कम स्पीड पे टर्न करना है, सेंटर के पास रहो. ऐसा है. We can see that g and tan theta are constants for given situation, but we can understand that r can change when the car moves up or down the inclined plane of the road. Hence, when the speed of the car goes below v naught, then car tends to move down the inclined plane of the road to decrease the value of r. And similarly, when the speed of car is more than v naught, then the car tends to move up the inclined plane of the road to increase the value of r, so that the equation 4 is still maintained. In case of frictionless road, car will move up or down on changing the speed from v naught. वही होता है वो वाला, अगर स्पीड स्लो गई तो वो नीचे नीचे आने लगते हैं, करेक्ट.
well of death. But if friction is present, then it will try to oppose the motion of the car up or down the inclined plane of the road. मतलब तुम उसी जगह पे स्पीड बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो, फ्रिक्शन अगर होगा तो, because it will help ना. Banking of road with friction, maximum possible speed. हाँ, प्रैक्टिकल नहीं, ये वाला प्रैक्टिकल है. अब यहाँ पे प्रैक्टिकल है तो और सारे कंपोनेंट्स ऐड हो गए. एन हम समझ रहे हैं, एन के दो कंपोनेंट हम समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक और नीचे कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, दैट इज एफ के कंपोनेंट. यस, एफ इज अलोंग द, सॉरी, टुवर्ड्स द सेंटर. उसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं तुम्हें, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा. ठीक है, एफ साइन थीटा किसकी डायरेक्शन में? mg की डायरेक्शन में, वेट, एक्चुअल वेट की डायरेक्शन में. अच्छा, तो n cos थीटा किस किस को बैलेंस करेगा? mg और f sin थीटा को. मतलब हम बोल सकते हैं कि n cos थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा, सॉरी, mg प्लस f sin थीटा. वही लिखा है यहाँ पे देखो, बट थोड़ा अलग तरीके से लिखा है. मतलब एफ साइन थीटा थोड़ा एमजी से या बट डजंट मैटर. वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस, वर्टिकल प्लेन वाले सारे फोर्सेस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इवन इफ दे आर नॉट इन द सेम पॉइंट, सेम लाइन. नो 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 प्रॉब्लम. एफ साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा. वर्टिकल हो गया. यहाँ पे वो लोग ने एम जी की वैल्यू निकाल ली है. हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम निकाल सकते हैं. हॉरिजॉन्टल बताओ क्या होगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन? साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. एग्जैक्टली, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. ये दोनों का सम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टू कीप द कार मूविंग इन द सर्कुलर पाथ. एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन है, एन साइन थीटा बेंडिंग की वजह से, बैंकिंग की वजह से, वो स्किड होने से रोक रहा है. करेक्ट. तो अब दो फोर्सेस स्किड होने से रोक रहे हैं, पहले एक ही था, अब दो हो गए. एक तो फ्रिक्शन है और एक बेंडिंग, बैंकिंग. और सो इट्स ऑफ कोर्स हेल्पफुल. ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो वी गेट, दोनों इक्वेशन मतलब 5 और 6, ये 5 और 6, ये दोनों को डिवाइड किया तो वी गेट वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, इसमें आर जी को वो साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर. और as we assume more speed of the car, then the friction F will also increase, but maximum possible speed, for maximum possible speed V max, friction F becomes maximum and is equal to mu n. Here mu is the coefficient of friction between the road and the car's tire. Equation 7 can be rewritten as follows for maximum possible speed. So V max is equal to under root of Rg times sin theta plus mu cos theta अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. मतलब वी मैक्स की वैल्यू ये लोग ने लिख दी यहाँ पे. इफ द स्पीड गोज बियॉन्ड द वैल्यू गिवन बाय इक्वेशन 8, then friction will not be able to stop the car from going up the inclined plane of the road. Above equation 8 can also be written as this. वो लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है और सिंप्लीफाई किया है इसको. सो अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस म्यू कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा. और अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा क्या है पता है? वी नॉट. वी नॉट क्या था? वी नॉट क्या था? मैक्सिमम स्पीड विदाउट फ्रिक्शन. बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, मिनिमम पॉसिबल स्पीड. क्यों मिनिमम? वो तो फर्स्ट केस था, वो अंदर ना चले जाए. अंदर ना गिर जाए. मिनिमम स्पीड मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि बैंकिंग है तो तुम स्लो चलाओ, मिनिमम स्पीड भी होनी चाहिए तुम्हारे पास, नहीं तो यू कैन स्किड इनवर्ड्स ऑल्सो. सो कौन सा फ्रिक्शन नहीं है? बैंकिंग ज्यादा क्यों चाहिए?
हाँ तो ठीक है, बट हाँ ठीक है, ज्यादा चाहिए शायद, बट फ्रिक्शन नहीं है उसका और भी एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे। बैंकिंग है, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कार अंदर भी गिर सकती है, मतलब यू कैनॉट स्टॉप ओवर देयर। वंस यू स्टॉप, व्हाट हैपेंस, यू स्लिप डाउन। You have to keep on moving because there is no friction. If there is friction, there is no issue. So there should be a maximum speed and a minimum speed both. Maximum वाला हमने देख लिया v naught, ये है v min। तो नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। फ्रिक्शन क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। अगर टेंडेंसी नीचे गिरने की, उसको भी तो फ्रिक्शन अपोज करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन वहां होता है जहां जिस उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है जिसके अपोज में टेंडेंसी होती है मोशन की। When the speed of the car goes below v naught, given by equation 4, then it tends to slide down the inclined plane of the road and the friction F acts up the incline as shown in the figure. मतलब अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि मोशन अंदर की तरफ जा रहा है। ये रहा ना F, ये देख। लेकिन वो अंदर आ रही है ना, सही बात बोल रहा है, एक मिनट। Banking of road without friction, when the speed of the car goes down below v naught, given by the equation 4, then it tends to slide down. सही बोल रहा है वो। Why they have written without friction then? नहीं लिखना चाहिए ऐसा। विथ फ्रिक्शन का ही केस होगा मिनिमम, विदाउट फ्रिक्शन तो एक ही केस था ये वाला। ये भी विथ फ्रिक्शन ही है यार, फ्रिक्शन नहीं है तो फिर एफ आया कहां से? सही बोल रहा है, यू राइट। विथ फ्रिक्शन लिखना चाहिए, फ्रिक्शन लेस में फिर हम लोग ये सारे कंपोनेंट ही नहीं लेंगे ना, फ्रिक्शन का कंपोनेंट नहीं आएगा, होगा ही नहीं, फिर ये सब पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ तो दिया हुआ है पूरे इक्वेशन, मतलब फ्रिक्शन है, सो दिस इज विथ फ्रिक्शन फॉर श्योर। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट्स बता दो। n नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, n cos थीटा, n sin थीटा। थीटा कैसे आया ये भी हमें समझ गया, बिकॉज दिस इज 90 माइनस थीटा। f अगेंस्ट द टेंडेंसी टू मूव और स्लिप टूवर्ड्स द सेंटर। f के दो कंपोनेंट, f cos थीटा, f sin थीटा। ओके, हाँ गाड़ी नीचे गिर रही है क्योंकि ये स्पीड बहुत कम है, तो गाड़ी नीचे गिरेगी। गाड़ी नीचे गिरेगी तो एफ उसको रोकेगा नीचे गिरने से। एफ के दो कंपोनेंट है। अब मुझे इक्वेशन बताओ, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, सही है। एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। सेंटर की तरफ कौन लेके जा रहा है? हॉरिजॉन्टल वाले बता दो ना। एन साइन थीटा, नहीं हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो वी डोंट नो ना ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। एन साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सेंटर की तरफ कौन सा, नहीं आई एम सॉरी गलत बोला। हाँ तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एम वी स्क्वेयर बाय आर। करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, ज्यादा रहेगा। एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। यस, on dividing we get this value, again same तरीके से divide किया है। if the speed of car is further decreased, then friction F will increase, but for minimum speed
friction F becomes maximum and will be equal to mu n. Here mu n is the coefficient of friction between road and tire. So minimum speed का भी एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं. इससे कम स्पीड पे स्लिप होएगा वो towards the center. बैंकिंग की वजह से नहीं होगा, नहीं वहीं पे रह जाएगा. तुमने देखा मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क क्या है? म्यू की साइन का फर्क है. Just by replacing mu by minus mu, we can change the expression for minimum speed to maximum and vice versa, because the only difference in two situation is the opposite direction of friction. देखते हैं ना, चेक करते हैं. सेम फॉर्मूला था, ऊपर माइनस नीचे प्लस है. इसमें मिनिमम में, उसमें प्लस और माइनस है. सही है ना? मैक्सिमम मिनिमम स्पीड भी इजी है, मतलब फॉर्मूला भी इजी है. यही फॉर्मूला याद रखना. V नॉट का अंडर रूट RG tan थीटा याद रखना. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थियरी पूरा हो गया. मैं ये भेजता हूँ तुमको, प्लीज़ नोट्स ले लेना, सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, ताकि जब हम न्यूमेरिकल शुरू करें तो तुम रेडी हो उसके लिए फॉर्मूला के साथ.